आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये एक अहम मुद्दे पर हम लोग मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अहम मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मकसद ये है कि किस तरीके से गवर्नमेंट हेट स्पीच देने वालों के साथ नरम रवैया रख रही है। ना सिर्फ नरम रवैया रख रही है बल्कि दे आर ग्रोइंग देमसेल्व्स अंडर दी सेफ पैट्रोनेज ऑफ दी स्टेट लीडर्स, स्पेशली नाउअडेज सम टीआरएस लीडर्स। राजा सिंह जो एक मामूली सी गुड़म्बे का व्यापारी था, वो किस तरीके से हेट स्पीचेस देकर अपनी कार्रवाई करते हुए उसने कैसा कारपोरेटर बना और कैसा अपने आप को एमएलए बनाया। तो सबसे पहले तो राजा सिंह का नाम जो आया, शहर में 5 मर्डर्स हुए थे पहले 2004 और 2005 2006 में देयर वर 5 मर्डर्स। एक पादरी का मर्डर हुआ था, फादर का एक मर्डर हुआ था और एक मर्डर हुआ था। उसके बाद में कोई एक ऑटो ड्राइवर का बहादुरपुरे का मर्डर हुआ था। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये 5 मर्डर केसेस दिए गए थे, जिसके अंदर कुछ नंबर्स जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ से सेल टवर्स नंबर्स निकाले। तो मद्रास के तमिलनाडु हिंदू मुनाई के वर्कर्स का कुछ नंबर्स आए थे उसमें, और नांदेड़ के कुछ वर्कर्स जो बिलोंगिंग टू सम आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन, दैट नंबर्स क्रॉप्ड अप एंड देन दिस वेंट ऑन। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर उनको कौन शेल्टर दे रहा था। देन दी न्यूज़ केम इन के दिस शेल्टर वाज गिवन बाय राजा सिंह। फर्स्ट टाइम हिज नेम केम अराउंड 2004 and 2005. Then basically he joined TDP party, he became a corporator, he continued his activities. When Stephen Ravindra was the DCP's West Zone and Sri A.K. Khan was the Commissioner of Police at that period, a brief note was sent to N. Chandrababu Naidu, the then President, who was the former Chief Minister of Andhra Pradesh. A brief note was sent by these 2 officers showing some 35 cases involved. Your party leader is doing such things, and he became a Hindu face in the TDP at that period. So in spite of minority leaders, many minority leaders like Zahid Ali Khan and some others went and complained to the Chief Minister, the former Chief Minister, TDP President, to throw him out of the TDP, but he could not take a decision saying that there will be a Hindu backlash, Hindu communal backlash if I throw him out. Then suddenly what happened? He jumped over to BJP and then he joined and became an MLA, but he continues his activities. Here what is astonishing is whether there is a TDP government or there was a Congress government for 10 full years under Rajshekar Reddy, Roshaya, Kiran Kumar Reddy. There is one section 153A where a prior permission is required to prosecute from the government. So in the case of any Muslim leader, if I have given any wrong speech or if a police has booked a case against me under 153A, the permission is given by the government within 24 hours. The file to the Principal Secretary Home from the Commissioner of Police or Commissioner of SP in a district goes to the Principal Secretary. It is dispatched within 3 days with a prior permission. But I am very astonished to know there was a Congress government and now the TRS government. Since last nearly 3 years it is being completed. The files pertaining to the prior permission to prosecute Raja Singh are pending with the Principal Secretary Home, the government level, since last 3 years. What is the reason, I want to ask? On one side, our Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao and his son KTR, his daughter Kavita, day and night they say that we are for the minorities, to protect the minorities, we are doing so and so things. हम रमज़ान का पैकेज दे रहे हैं, हम स्कूल्स डाल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे अजीम तरीन चीज़ जो है कि उनकी इज्जत है।
हमको रोटी नहीं चाहिए, हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हमको मकान नहीं चाहिए, हमको हमारी इज्जत चाहिए। कि आपके दौर में मेरा सीधा सवाल है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कि आपके दौर में एक आदमी राजा सिंह ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, कल तक ये गली और मोहल्लों में मुसलमानों को गालियां देता था और वो गालियां देने के बाद में वो बाइज्जत बरी हो जा रहा था, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ही गेव ए स्पीच सेइंग दैट ओल्ड सिटी इज पाकिस्तान का एक टुकड़ा हो गया और ओल्ड सिटी के अंदर दहशतगर्द रहते, आतंकवादी रहते। द ऑनरेबल स्पीकर वाज देयर, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर वाज देयर इन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। I am very much astonished that there were nearly 100 MLAs of different political parties sitting quiet. No one objected to his speech. पुराने शहर में मुख्तलिफ तेलंगाना के MLAs आके बिरयानी खा के जाते, हमारे दावतों में आते और हमारे हर चीज़ से वाकिफ़ रहने के बावजूद वहाँ पर राजा सिंह की स्पीच पर खामोशी रखना, ये मतलब है कि यानी जुल्म के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाना भी एक गुनाह है, जुल्म है, और जुल्म के मामले में खामोश बैठना भी एक जुर्म है मेरी नज़र में। तो एट दैट पीरियड दे केप्ट क्वाइट। ऑनरेबल स्पीकर गेव ए स्टेटमेंट दैट टू एक्सपंज द रिमार्क्स, बट टिल टुडे आई कैन सी, आई हैव जस्ट विद इन 3 minutes बिफोर आई हैव सीन कि आज भी वो यूट्यूब पे, ABN चैनल पे और दूसरे T न्यूज़ पे वो राजा सिंह की असेंबली की दी हुई स्पीच आज भी है, वहाँ पर आज भी है। जब ऑनरेबल स्पीकर एक्सपंज बोल देने के बाद में वो यूट्यूब से भी निकाल देना चाहिए था। आई हैव रिटन नियरली 3-4 लेटर्स टू द ऑनरेबल स्पीकर दैट आप एक्सपंज बोल देने के बाद में आज भी वो है, क्यों नहीं निकाला जा रहा है, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द स्पीकर टू एक्सपंज दैट रिमार्क्स। मीनवाइल पहला मैं इनको कंप्लेंट दिया था इनके खिलाफ में, राजा सिंह के खिलाफ में 2010 में एक मीटिंग हुई थी। यू कैन सी द 3rd पेज, क्राइम नंबर 81 2010। आई गेव ए कंप्लेंट विथ रिगार्ड टू सम हेट स्पीच गिवन एट, ये श्री रामनवमी के जब डॉक्टर आचार्य गिरिराज किशोर को बुलाए थे ये लोग, एक स्पीच दिए थे जिसके अंदर ये वाजे स्पीच में ये बोले थे कि इंडियन करेंसी पे जो गांधी जी की फोटो है उसको निकाल देना चाहिए, गांधी जी वाज ए कम्युनल एलिमेंट। वो स्पीच के रिकॉर्ड के साथ हम शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन में 2010 में FIR इशू करे। पहले तो 3 पुलिस स्टेशन आपस में लड़ते रहे कि शाहीनाथगंज वाले बोले कि जो मीटिंग का एरिया हुआ मेरा नहीं है, अफजलगंज का है, अफजलगंज वाले बोले हमारा नहीं है, बेगम बाजार का है। अल्टीमेटली सम सीनियर ऑफिसर को आने के बाद में वहाँ पर स्पॉट पे जिस वक्त पे मीटिंग हुई वहाँ पर आके ये तय किया गया कि दिस मीटिंग वेन्यू बिलोंग टू अफजलगंज पुलिस स्टेशन। द केस वाज transferred from Shahinajganj to Afzalganj police station. Since last 2010, the Afzalganj police, the Hyderabad police is waiting for a prior sanction of the government. आज की तारीख तक फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पास अटकी हुई है। तो क्या वजह है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसके बाद में मैं जो ऊपर पूरी लिस्ट में नंबर्स दिया हूँ, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन का एक केस है, क्राइम नंबर 135 of 2005 अंडर सेक्शन 302, 201, 365, 102B रेड विथ 34 IPC। इसके अंदर राजा सिंह बाइज्जत बरी हो गया और उसमें यह है कि लैक ऑफ एविडेंस में बाइज्जत बरी हो गया। तो ये लैक ऑफ एविडेंस का वर्ड क्या है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार है और फिरका परस्तों के खिलाफ में आपका एक रिकॉर्ड रहा है काम करने के लिए। आखिर क्या मजबूरी है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब की? क्या केसीआर साहब आपको बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ में एक्शन मत लो? क्या केसीआर साहब ये चाह रहे हैं कि इन्हें बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को डैमेज कर रहा है, इंदर सिंह हमारे किशन रेड्डी को गालियां दे रहा है, ये इसलिए आप नरम रवैया कर रहे हैं क्या? दूसरा जो है क्राइम नंबर 389 ऑफ 2010 ऑफ लंगर हाउस पुलिस स्टेशन, केस अवेटेड फॉर CC नंबर। क्या बड़ा जोक है, देखिए आप, FIR नंबर होने के बाद में एक CC नंबर होता। जब केस सेशन कोर्ट को जाता, सेशन कोर्ट के जो सेक्शंस रहते, एक नॉर्मल कोर्ट में चलता है, एक सेशन कोर्ट में चलता है केस। हेट स्पीच केसेस और ये जो लड़ाई झगड़े के केसेस कम्युनल रहते वो सेशन कोर्ट में चलते, क्योंकि इसके अंदर 353 था
353 कोई पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करने का था। तो द केस इज अवेटेड फॉर सीसी नंबर। कितना बड़ा जोक है देखिए आप। हमारा अगर कोई एक मुस्लिम लीडर का एक वारंट रहा तो 4 गाड़ी पुलिस आ जाती है, सीट वाले पूरे आ जाते हैं। जो हमारे गौस एक्स कारपोरेटर का एक 4-5 साल पुराना वारंट था, बेचारे को अपने भाई की बच्ची की शादी में से उठा लेके गए। मुजाहिद सलीम अब्दुल अलीम इस्लाही के बेटे मुजाहिद सलीम का जनाजा गया था, उसमें कुछ पत्थर मारे थे। पहले 10 आदमी को बुक करे के सीसीएस वाले, उनके ऊपर केस बाइज्जत बरी हुआ, फिर उसके ऊपर 10 डाले, उसके ऊपर 10 डाले, ऐसा करके अब तक 73। हाल में 10 दिन पहले 13 जनों को गिरफ्तार करे। आपके पूरे अखबारात में आया, स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा कवरेज आया उसका। तो जहां पर मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम केसेस की बात है, द सिटी इज वेरी एक्टिव एंड द ऑफिसर्स आर वेरी एक्टिव। अच्छा, फिर उसके बाद में तीसरा है देखिए, एक टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन, क्राइम नंबर 77 ऑफ 2007 अंडर सेक्शन 332, 324, 506 रेड विथ 34 IPC पेंडिंग ट्रायल ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। जबकि कानून यह है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दे देना चाहिए। तो आखिर क्या वजह है कि 2007 से लेकर अब तक टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन को फुर्सत ही नहीं मिल रही बेचारों को, इंस्पेक्टर साहब को चार्जशीट फाइनल करने की। एक और एक है क्राइम नंबर 51 ऑफ 2010 अंडर सेक्शन 147, 332, 307, 427, 153 IPC रेड विथ 149 ऑफ हबीबनगर पुलिस स्टेशन। केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक वर्ड है पुलिस के बुक में, UI केस बोलते हैं उसको। UI के मायने क्या है? अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर आप RTI में अगर कोई दरखास्त डालेंगे, किसी के बारे में अगर पूछेंगे कि फलाने लीडर पे कितने केसेस है, तो ये देते हैं कि जो ऑलरेडी ही इज अटेंडिंग कोर्ट, पुलिस विल नॉट गिव दी प्राइमा फेसिस, पुलिस विल नॉट गिव दी वो नहीं देते। जो UI केसेस है अंडर इन्वेस्टिगेशन मीन्स अभी तक मेरे को गिरफ्तार नहीं किए। आई एम द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन ऑफ द सिटी, आई एम द मोस्ट हेल्पफुल टू द TRS गवर्नमेंट। मैं जब चाहे जब TRS गवर्नमेंट को मदद कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को कई केसेस में से गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? UI केसेस। और एक सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि अगर कोई मुलजिम को 10 साल तक अगर उसको कोई पुलिस अगर केस में गिरफ्तार नहीं करी, या अगर उसमें उसको चार्जशीट फाइनल नहीं करी, तो दैट केस स्टैंड्स टू बी क्लोज्ड। ये है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। तो पुलिस इज हेल्पिंग, पुलिस के आला ओहदेदार, अरे यार डिस्टर्ब मत करें। द पुलिस इज नॉट हेल्पिंग, पुलिस इज हेल्पिंग द क्रिमिनल्स। ये 10 साल तक उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्राइम नंबर शाहीनाथगंज के कितने केसेस है देखिए। हमारे शाहीनाथगंज के जो इंस्पेक्टर अब मौजूदा चदरघाट इंस्पेक्टर है बेचारे, तो उनके दौर में जो है क्राइम नंबर 9 ऑफ 2007 एक है, फिर क्राइम नंबर 76 ऑफ 2007 एक है। इसमें भी वही है केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, UI केस बोल रहे हैं इसको। ये बड़ी मुश्किल से निकाला। ये मेरे को जो दिए कि कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में बुला के मेरे को ये दिए कि ये देखिए साहब, इसके ऊपर इतने केसेस हैं। तो द लिस्ट गोन ऑन, आई हैव गिवन द एंटायर लिस्ट टू आपके द्वारा। हम चाहते हैं कि कम से कम मीडिया में आया ना, क्योंकि आजकल पुलिस या हुकूमत किसी से दबती है तो सिर्फ मीडिया वालों से दब रही है आजकल। तो ये गुंडा अनासीर को कंट्रोल में लाने के लिए एक मीडिया, ये कल अगर आप लोग हमारा कोऑपरेट करें, ये पूरी लिस्ट अगर छापेंगे कि DGP महेंद्र, हमारे DGP अनुराग शर्मा साहब तो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट रिपोर्ट करते, ट्विटर पे कोई कंप्लेंट करते इमीडिएट रेस्पॉन्ड करते बेचारे। मैं आज 10 दिन से ये केसेस के बारे में ट्विटर पे लिख रहा हूँ बेचारों को। हमारे हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस को कर रहा हूँ। ये सिर्फ स्टोरी जो है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग आई एम सेइंग। अभी साइबराबाद में कितने केसेस है, निजामाबाद में केसेस है, महबूब नगर में केसेस है, वरंगल में केसेस है, द एंटायर तेलंगाना में इनके ऊपर केसेस है। एक चीज़ अब इसके बाद में ये हुआ कि रिसेंटली उनकी एक स्पीच आई थी ऑन हमारे राजा सिंह साहब एक स्पीच दिए थे जो SR न्यूज़ चैनल के है, ये श्री राम न्यूज़ चैनल कुछ है, ये उनका प्राइवेट चैनल है। हालांकि पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर से श्री राम चैनल को बैन करो, लेकिन आज भी वो चैनल चल रहा, आज भी यूट्यूब पे एक्टिव है वो। श्री राम चैनल के ऊपर उनका एक स्पीच आया था वाइल एड्रेसिंग ए प्रोग्राम ऑफ अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदू जान जागृति समिति
राजा सिंह साहब ये कमेंट करे कि जब भी यहाँ पर उन्होंने शोभा यात्रा या राम नवमी की यात्रा निकालते तो हैदराबाद के मुसलमान मस्जिदा खाली करके मस्जिद को ताला डाल के चले जाते, टोपी पहन के नहीं फिरते, और पुलिस वाले खुद बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स को बुला के ये बोलते हैं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, लिहाजा आप जो है कि इसको आप अपना मकान खाली करके चले जाओ। तो आई रोट ए लेटर टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, आई रोट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस, द स्पीच गिवन बाय राजा सिंह MLA, whether that speech is true or not. If it is not true, take a necessary action against him बोल के हमारे जब, क्योंकि लोकल PS मेरा डबिलपुरा PS आता, आई गेव ए कंप्लेंट इन द डबिलपुरा पुलिस। द डबिलपुरा पुलिस अंडर द सुपरविजन ऑफ DCP साउथ जोन इमीडिएटली केस बुक करे। वन FIR was issued अंडर 153A, FIR नंबर 82 ये उनको बुक करे। बुक करने के बाद में द डबिलपुरा इंस्पेक्टर गेव ए नोटिस टू राजा सिंह टू अपीयर। राजा सिंह साहब आके अपीयर हुए डबिलपुरा पुलिस के सामने, आके CRPC की एक नोटिस लेकर वो जवाब भी दिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में अचानक क्या पॉलिटिकल प्रेशर आया, क्या आया नहीं मालूम मेरे को, कि द केस वाज ट्रांसफर्ड टू सिट। ये हमारे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के ये केस दे दिए बोल के मेरे को एक नोटिस आया। अब आप देखिए मेरे को कैसा बुला रहे हैं, कंप्लेनेंट को कैसा बुला रहे हैं, क्रिमिनल को कैसा बुला रहे हैं कि 3 दिन के अंदर तुम हाजिर हो। हमारे श्यामला राव इंस्पेक्टर सिट एक नोटिस दिए मेरे को ऑन 5/1/2016। नोटिस देके ये बोले कि 3 दिन के अंदर आप आके हाजिर हो। तो मैं इमीडिएट गया, 3 दिन के अंदर गया, बेचारे मिलते नहीं। कई बार मैं उनके दफ्तर को गया, नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से वो बेचारे मेरे को 11/3/2016 आई मेट हिम पर्सनली। मैं जाके पूछा कि व्हाट इज द रीजन फॉर कॉलिंग मी व्हेन आई हैव गिवन ए CD। राजा सिंह की जो स्पीच है वो स्पीच के ऊपर आई हैव गिवन द CD, आई हैव गिवन द लिंक, आई हैव गिवन एवरीथिंग एंड स्टिल इट इज ऑन दैट। तो आप क्यों बुलाए मुझे बोल के पूछा। खैर आई एम रेडी टू कोऑपरेट। वो बेचारे इंस्पेक्टर साहब ये पूछे कि आप कंप्लेंट दिए, सीरियस है क्या साहब, आप वाकई केस करना चाह रहे हैं क्या साहब। तो मैं बोला कि आप ऐसा पूछ रही कि क्या राजा सिंह आपके जीजा लगते क्या, जो आपको इतनी तकलीफ हो रही मेरे कंप्लेंट से। तो खैर गुस्से में आ गए बेचारे। गुस्से में आने के बाद में मैं, क्योंकि पुलिस वाले ये बोलेंगे कि हम उनको नोटिस दिए एंड ही डिड नॉट अपीयर, आई हैव टेकन ए फोटो स्टैंडिंग आउटसाइड द सिट ऑफिस विद ए न्यूज़पेपर। मेरे कहने आज भी वो फोटो है। फिर उसके बाद में राजा सिंह साहब मेरे को फिर 22/6/2006 आई हैव रिसीव वन मोर नोटिस। ये नोटिस आई वही सेम इंस्पेक्टर कहने से कि यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहते। अब मैं क्या कोऑपरेट करूं बोलिए साहब। अब क्या बेचारा उनको मैं लेके जाके शराब पिलाऊं क्या मैं उनको लेके जाके राजा सिंह के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए उनको कुछ तफरी कराऊं क्या मैं, बोलिए आप। तो ये नोटिस देने की क्या वजह है। मैं फिर आफ्टर रिसीविंग दिस नोटिस अगेन फिर वही बोल रहे हैं 3 दिन के अंदर आओ आप, फिर से आप कोऑपरेट नहीं कर रहे एजेंसी से। सो आई हैव गिवन दी नोटिस कॉपीज टू एंटायर मीडिया। फिर उसके बाद में मैं कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा के साहब इन्हों क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या इन्हों है क्या हिस्सा, इन्हों राजा सिंह के क्या रिश्तेदार है जो इन्हों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं केस क्लोज कर देने के लिए। 2 दिन पहले मैं गया, मेरे को डाउट आया तो आई वेंट टू दी सिट ऑफिस टू इंक्वायर के व्हाट इज हैपनिंग। तो मेरे को ये नोटिस एक दिए कि योर केस हैज बीन क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। आप बोलिए कि और क्या एविडेंस होना, यानी एक मुकाम पर अगर कोई वाकया हो रहा तो और लैक ऑफ एविडेंस बोल रहे हैं। मैं क्या एविडेंस देना ये बोलिए आप। व्हाट मोर एविडेंस आई शुड गिव। आई हैव गिवन द CD, आई हैव गिवन द YouTube लिंक कॉपी, टिल टुडे इट इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, बट द सेम इंस्पेक्टर श्यामला राव हैज क्लोज्ड द केस सेइंग दैट देयर इज लैक ऑफ एविडेंस। ये लैक ऑफ एविडेंस के मायने क्या है, व्हाट डज दैट मीन। चलिए उसके बाद में फिर क्या हुआ, आई गेव द सेम on 4 September 2015 I gave one more complaint to the Inspector of Police Jabalpura
इसमें उन्होंने ये लिखे कि उनकी एक स्पीच थी, ये दिल्ली में दिए थे स्पीच। दिल्ली में स्पीच में ये बोले कि जो होली प्लेस है काबा, दैट इज एक्चुअली नॉट द मुस्लिम वर्शिपिंग प्लेस, बट दैट काबा इज ए कोई शिवा हिंदू का आइडल रखा हुआ है उसमें। ये मुसलमान बेवकूफ़ है जो जाके वो शिवा आइडल के पीछे फिर रहे हैं, हमारे ही भगवान के ये कर रहे हैं बोल के। और उसके अंदर कई चीज़ें बोले। एक लंबी 45 मिनट्स की स्पीच थी उनकी, मेरे एक दोस्त दिल्ली से रिकॉर्ड करके भेजे, एंड उन्होंने खुद वो अपलोड करे सेम श्री राम चैनल, आपके राजा सिंह यूट्यूब चैनल पे, किस पे की अपलोड करे। तो उसका लिंक, उसकी स्पीच की कॉपी, on 4th September 2015 I gave a complaint again to the Inspector of Police, Dabirpura. The same crime number was issued, FIR डाले 115/2015 under 153A 295/A। हमारे DCP साउथ जोन बहुत सख्ती कर रहे थे उनके साथ। सत्यनारायण previously when he was the West Zone DCP also, he was very strict with regard to the communal elements. And during the period of Stephen Ravindra also, he was also very strict with regard to these communal elements. But ये केस अचानक सेम वही स्टोरी हुई, चूहे की कहानी, कि ये केस को भी अचानक उसको सिट को ट्रांसफर कर दिए। द केस वॉज ट्रांसफर टू द सिट। फिर से हमारे सिट वाले सेम मेरे को एक नोटिस दिया, 3 दिन के अंदर हाजिर हो। हम बोले ठीक है। आई अगेन वेंट टू द सिट ऑफिस, आई मेट हिम द इंस्पेक्टर। बोले साहब आप फिर आ गए। मैं बोला हाँ, हम इविल डेड के शैतान हम आ गए। फिर उसके बाद में बेचारे वो केस को भी क्लोज कर दिए। वो केस को भी क्लोज करके देखिए आप, ये नोटिस दे दिए कि दैट केस हैज बीन क्लोज विद रिगार्ड टू लैक ऑफ एविडेंस। तो ये व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ श्यामला इंस्पेक्टर सिट, इनका क्या इंटरेस्ट है? जबकि हकीकत ये है कि इनके ऊपर 2015 के 2017 के केस क्लोज नहीं हो रहे, 2004 से इनके केसेस पेंडिंग है। 2004 से केसेस पेंडिंग है, उसके अंदर यूआई बता रहे हैं ये 11 महीने पुराना 15 महीने पुराना केस क्लोज कर दिया हमारे। तो ये क्या, व्हाट इज द रीजन? इनके ऊपर श्यामला इंस्पेक्टर सिट के चंद ऑफिसरों के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। अगर हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस वाकई अगर ईमानदार है तो इनके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। चलिए उसके बाद में हम क्या किए, ये दरवाजा खटखटाए हमारे माइनॉरिटी कमीशन का। Whole of the State Minorities Commission is also in the dock। कि क्या आखिर वाकई क्या हमारा माइनॉरिटी कमीशन नाम का है, या वाकई हमारा माइनॉरिटी कमीशन काम करना चाह रहा, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और द माइनॉरिटी कमीशन इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ some communal elements। Here the question rises, I petition to the Minority Commission Honorable Chairman Sri Abed Rasul Khan on 7th July 2015 saying that there have been number of cases against one person, राजा सिंह, एक राउडी शीटर था, कारपोरेटर बना, आज एमएलए है। नंबर ऑफ केसेस है उसके ऊपर, नियरली 50 केसेस है कि इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग। हमारा मुतालिबा था स्टेट गवर्नमेंट के आप प्रेशर डालते हुए स्पेशल कोर्ट फॉर्म करो, पूरे केसेस उसके एक कोर्ट के अंदर लाओ, स्पीडी ट्रायल करो, 1 साल के अंदर पूरे केसेस की फैसला करवाओ, और पूरे केसेस एक स्पेशल टीम फॉर्म करके उनको दियो देखने के लिए, ईमानदार ऑफिसर्स को लाओ। तो ठीक है, हमारे आबिद रसूल खान साहब इशूड ए नोटिस टू दी, जबकि होना चाहिए था कि आबिद रसूल खान साहब वुड हैव गिवन ए नोटिस टू दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम या डीजीपी को नोटिस देना था। मगर बेचारे क्या करे, हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन को नोटिस दिए। ये मेरे को नहीं मालूम नोटिस दिए सो, क्योंकि मैंने हमारा गिव ए कंप्लेंट आई कीप फॉलो, एक फाइल बना के नाम रख के, फिर उसके ऊपर पूरा जैसा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रख के बर्थ सर्टिफिकेट लिखते, हम भी एक मुल्जिम के ऊपर एक फाइल बन जाती। आई केप्ट ऑन फॉलोइंग विद द माइनॉरिटीज कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन को पुलिस वाले जवाब दिए, डीसीपी साउथ जोन साहब जवाब दिए, बोले कि मेरे एरिया में उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, ओनली 2 केसेस, 1 रिगार्डिंग टू डबीरपुरा एंड अमजदुल्ला खान कंप्लेंट, 1 रिगार्डिंग टू फलकनुमा। वो फलकनुमा के केस का अब तक क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है। 4 दिन से फलकनुमा को हमारा बच्चा जाके बैठा के राजा सिंह के ऊपर आप केस बुक करे, सब उसके ऊपर क्या एक्टिविटीज करे बोले तो इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ये पूरे काफी आपको दिया मैं ये। उसके बाद में फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ वेस्ट जोन भी रेस्पॉन्ड करे कि उनके ऊपर 3 केसेस बताए। देखिए आप, मेरे कने आरटीआई में रिकॉर्ड है कि 13 केसेस आर देयर इन वेस्ट जोन,
when the West Zone DCP is responding that saying only 3 cases are pending. ये West Zone की रिपोर्ट है जो Minority Commission को सबमिट करे. तो when I got the copy of this commission, जो कमीशन को रेस्पॉन्ड करे, अरे मैं बोला साहब ये कमीने पे 3 केसा नहीं है, इसके ऊपर और कई केसेस है वेस्ट जोन में, खाली शाहीनाजगंज में तकरीबन 10 केसा हैं, तो ये कैसा होता. एंड आई रिक्वेस्टेड टू दी ऑनरेबल चेयरमैन टू राइट ए लेटर टू दी डीजीपी और टू ए लेटर टू दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और सीएम को आप जाके पर्सनल मिलो साहब, आप मिल के ये बोलो कि वो आज तक बेचारे नहीं करे, क्यों नहीं करे, ये हमारे आबिद रसूल खान साहब क्यों नहीं करे, किसी को नहीं मालूम. Then again I petitioned the on 7/9/2015. This is my second petition to Abid Rasul Khan. फिर हम माइनॉरिटी कमीशन को सेकंड पिटीशन दिए कि बोले साहब ये राजा सिंह दिन पे दिन स्पीचा देते जा रहा, दिन पे दिन इन्हें मुसलमानों को गालियां देते जा रहा, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा इसके ऊपर. अगर आप कोई एक्शन नहीं ले सक रहे तो यू हैड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेयर दैट कि आई एम हेल्पलेस, आई एम अनएबल टू डू अगेंस्ट, पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ हिम. तो ये आज की तारीख तक वैसी पेंडिंग है. हमारा मुतालिबा ये है मौजूदा केसीआर गवर्नमेंट से कि अगर वाकई आपको मुसलमानों की हमदर्दी है, इफ़ यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइनॉरिटीज़, आप हमारे को ये सब मत दीजिए, उर्दू स्कूल की ज़रूरत नहीं है और हमारे को ये रमज़ान के पैकेजेस की ज़रूरत नहीं है. हमारी इज्जत हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है. हमारा कुरान, हमारा इस्लाम और हमारे नबी की शान हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत रखती है. जो शख्स हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जो शख्स हमारे कुरान के आयतों के मामले में गड़बड़ी कर रहा है, हम उसको सज़ा अगर आप दिलाएंगे. आप नईम नेक्सलाइट को मरवाए, बहुत अच्छा काम करे, हम वेलकम कर रहे हैं कि क्या रास्ता आप क्यों मरवाए, क्या वजह थी, ये वो आगे चल के बात आगे आएंगी. और मैं डिक्लेयर करूंगा वो भी कि आप जब स्टार्टिंग तेलंगाना मूवमेंट में नईम आपको कितना परेशान किया था, आप कैसा बदला लिए, वो एक लंबी स्टोरी है वो. तो आज की तारीख में आप जब नईम नेक्सलाइट को मरवा सकते, तो ये छोटे से राजा सिंह के ऊपर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वेदर यू आर यूजिंग राजा सिंह एज ए स्टूप, एक एजेंट इन द बीजेपी टू टार्निश, या बीजेपी के लीडरों को उन्हें परेशान कर रहा बोल के आप खुश है क्या उससे, पहली चीज, या आप उन्हें मुसलमानों को गालियां दे रहा, आपका दिखावा चेहरा एक है मुसलमानों के लिए और अंदर आपका दिल खुश हो रहा क्या, तो वो भी आप वाज़ेह करिए. हमारा मुतालिबा है. तो जिस तरीके से अगर नहीं करेंगे, हम कुछ दिन देखने के बाद में वी आर स्पीकिंग विथ आवर लीगल टीम, वी विल अप्रोच द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से हम अप्रोच होने वाले हैं कि इतने केसेस रहने के बाद में एक आदमी के ऊपर 7 साल तक चार्जशीट फाइनल नहीं हो रही और 3 साल तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही. ये इतने तनख्वाहियाँ देके हम ऑफिसर्स को रख रहे हैं, इतने गाड़ियाँ देके हम उनको फिरा रहे हैं, इतने एसीस में हम उनको बिठा रहे हैं. ये किस वजह है? द टैक्स पेयर मनी इज बीइंग गिवन टू द पुलिस टू कंट्रोल द कम्युनल एलिमेंट्स, टू कंट्रोल द क्राइम इन द सिटी. सो व्हाई दे आर नॉट एक्टिंग? दिस इज आवर डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी. एंड आई अगेन थैंक all the people for coming very long way. Thank you.